Calculate coefficient of correlation between price and quantity demand. Price and demand. 5, 10, 15, 20, 25, 40, 35, 30, 25 and 20. ये हमारा क्वेश्चन है। हमें ये कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। Carl Pearson's coefficient, it is summation of xy divided by under root of summation x square into summation y square. X is equal to x minus x bar, y is equal to y minus y bar. Y bar. X bar का वैल्यू, x bar का वैल्यू ये है x and this is y. Divided by number of x. Yes. Summation of x divided by number of x. इसी तरह y bar summation of y divided by n. निकालिए summation of x and summation of y. टोटल इनका क्या है? हाँ? 75. यह था prices. Yes sir. इसका n is equal to 5. n 5 है 140. 140. अगली क्वेश्चन में वैल्यू यथमस यही वैल्यू इसमें लगाइए। समेशन ऑफ x 75 डिवाइड बाय n है 5, 15 आ गया हमारा मीन। ठीक है, ये है 140 डिवाइड बाय 5। 150 आता है। हैं? 750 आता है इसका। 150 आता है। 150, यहाँ भी 150, इट इज 30। इसका 15 है, इसका 30 है। अब निकालिए ये x, दिस इज डिविएशंस फ्रॉम x, x माइनस x बार। x बार है 15, y का है y माइनस y बार, y बार है 30। x bar, this is x, 5 minus 15, it is minus 10. Yes, 10 minus 15, it is minus 5. 15 minus 15, 0. 20 minus 15, it is 5. 5 minus 15, it is 10. Okay. 40 minus 30, it is 10. 35 minus 30, ये बन गया 5। 30 minus 30, 0. minus 5 minus 10. अब हमें क्या जरूरत है? x स्क्वायर। x स्क्वायर चाहिए, y स्क्वायर चाहिए और x एंड y चाहिए। x स्क्वायर, जो x हमारा है इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। 10 into 10, 5 into 5, 0 into 0, 5 into 5, 10 into 10, 10 into 10 हो गया 100, 5 into 5, 25, 0 into 0, ये हो गया 0, 5 into 5, 25, 10 into 10, 100। इसी तरह इसका निकालिए 10 into 10, ये है 100, 5 into 5, 25, 0, 25 and 100। X and y, x, y, x multiplied by y, 10 into 10, minus 100. Minus 100. 5 into 5, minus 25, ये हो गया 0. 5 into minus 5, ये हो गया minus 25. 10 into 10, minus 100. इनके टोटल समेशन x स्क्वायर
summation y square, summation x and y. Summation x square निकालिए 150 गए 250 ठीक है यहाँ को 250 250 इसका भी 250 आएगा इसका भी 250 आएगा इसका 150 minus 250 ठीक है Yes, sir. Yes, sir. हाथ पुंचुगा 150 हाथ पुंचुगा 150 each minus minus 250 therefore और अब क्या बन गया summation xy है minus 250 divided by under root of x square 250. x square कितना है 250 उनको y square भी 250 है y square भी 250 है therefore r is equal to minus 250 divided by 250 का whole square 250 का whole square और अंडर रूट खत्म स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएगा ये दो है ना 250 है Yes, जी सर हाँ ये बन गया और बराबर है minus 250 divided by 250 250 खत्म और is equal to minus 1 और is equal to minus 1 इसका मतलब क्या है perfect negative correlation there is perfect negative correlation minus 1 आ गया perfect negative correlation there is perfect negative correlation between price and demand yes between price and demand yes मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा फिर उसको करिए तो वो सही है Yes, sir. मिटा हुआ है जी सर कीजिए रहा लिखिए आप क्वेश्चन find out Carl Pearson's coefficient of correlation find out Carl Pearson's जो हम निकालते हैं coefficient of correlation Carl Pearson's coefficient of correlation between marks in economics and history between marks in economics and history economics के marks और history के marks इनमें आपको correlation बनानी है 60 90 89 66 है सॉरी 66 है 90 है 89 है 55 58 44 42 हिस्ट्री में है 58 76 65
58, 53, 49 and 56. ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन कैपिटल यूनिट्स एंड प्रॉफिट रिसीट्स। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन कैपिटल यूनिट्स। सर लास्ट में 56 है या 50? ये Yes, है sir. 56 between capital units and profit receipts. Profit receipts. We have capital receipts and we have, sorry, capital units and profit receipts. Dawu 30 40 60 70 90 100 लिख लिया। 2 4 8 5 10 15 14 20 22 30। So these are two questions, ठीक है। जी इनमें सर। आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। हो गया ये? जी सर। अब एक छोटा सा हम दे देंगे इस पे प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या क्या प्रॉपर्टी है इसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कल मैं दिखाऊंगा आपको रैंक डिफरेंस मेथड है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, or has no unit, it is a pure number, it means units of measurement are not part of or। और का कोई यूनिट नहीं है, ये एक प्योर रियल नंबर है? और हैज नो यूनिट, और हैज नो यूनिट है, नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट इज ए प्योर नंबर। It is a pure number. It means units of measurement are not part of or। जो units of measurement होते हैं, for example price in rupees, quantity demand in kgs और capital in units, तो इसके साथ r का कोई वाबस्ता नहीं है। r का जो वैल्यू आता है वो खुद एक रियल नंबर है, वो खुद इंडिकेट करता है मैं क्या हूं, मैं पॉजिटिव हूं नेगेटिव हूं, 1 है पॉइंट है क्या है? It means units of measurement
or not part of R, or not part of R. R means coefficient of correlation or indicators coefficient of correlation. Second इसकी प्रॉपर्टी है नेगेटिव वैल्यू ऑफ और शोज इनवर्स रिलेशनशिप. ये मैंने आपको बार बार बताया. नेगेटिव अगर माइनस वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ और शोज इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशन जो नेगेटिव कोरिलेशन हम कहते हैं. इनवर्स relation between variables. Yes, if or is positive, अगर और पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तब इनवर्स रिलेशन है, अगर पॉजिटिव है तो उस वक्त हम कहते हैं the variables move in the same direction. If R is positive, the variables move in same direction. That is, there is positive relation, same direction. अगर R का वैल्यू नेगेटिव है तो इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ जाता है एक घट जाता है. They go against each other, they move in the opposite direction if it is negative. If it is positive, if R is positive, that means it shows variables move in the same direction. Variables move in the same direction. Third property है if R is equal to 0. अगर 0 है, then the variables are not correlated or there is no relationship between the variables. Yes, variables are not correlated. Or not correlated. अगर R का वैल्यू 0 आएगा, so there is no correlation. So there is no linear relation between them. However, other types of relations may be there. So we can say there is no linear relation between them. There is no linear relation between the variables. अगर R का वैल्यू 0 आएगा. Fourth one, if R is equal to 1 or R is equal to -1. If R is equal to 1 or R is equal to -1, there is perfect positive or perfect negative correlation. We can say the correlation is perfect or proportionate. The correlation is perfect or proportionate. 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 Perfect or proportionate. जितनी परसेंटेज एक में चेंज आती है उतनी ही बराबर दूसरे में भी चेंज आती है. So a high value of R indicates strong linear relationship, that is +1 and -1. So if there is +1 or -1, there is high degree of correlation. There is high linear relationship. We can say that is there is high degree of a linear relationship. Linear relationship. There is high degree of linear relationship. The fifth property is the value of correlation lies between -1 and +1. जिस तरह मैंने आपको बताया, ये it always lies between +1 and -1. Generally, you will get correlation in points. The value of correlation, lies between -1 and +1. -1 and +1. -1 and +1. That is
or is greater than or equal to -1, less than or equal to +1, less than or equal to +1. Okay, so इन्हीं के दरमियान +1 और -1 के दरमियान इनका वैल्यू फॉल करता है. So it can be point, it can be in points. It is in points. If the value of OR lies outside the range, so we can say if value of OR lies outside the range, that is, we can say that is more than 1. That is more than 1. For example, 2, 3, 4, or -2, or -3, or -4, etc., etc., etc. Yes, outside the range, it indicates, it shows there is error in the calculation. It shows, मैंने जो आपको कह दिया, अगर ये +1 से ज्यादा आएगा या -1 से कम आएगा, -1 से कम मतलब -2, -3, -4 इसमें आएगा, तो ये दिखाता है देयर इज एरर, कोई गलती हो गई है कैलकुलेशन में. इट शोज देयर इज सम एरर इन द कैलकुलेशन, देयर इज सम एरर in the calculation of correlation, in the calculation of correlation. ठीक है? Yes, So sir. this is all about the properties of coefficient of correlation. Okay? जी सर. तो अब हमारा नेक्स्ट मेथड है. 2 मेथड हमने कोरिलेशन के कंप्लीट कर दिए, सेकेटर डायग्राम एंड व्हाट, कॉरल पियर्सन कोएफिशिएंट. 2 हमने कर दिए, सेकेटर डायग्राम एंड दिस कोएफिशिएंट ऑफ कॉरल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो अब हमारा है स्पीयरमैनस रैंक कोरिलेशन और स्पीयरमैनस रैंक डिफरेंस. ये थर्ड एंड लास्ट मेथड इसका है, स्पीयरमैनस रैंक डिफरेंस. ठीक है? वो सेकेटर डायग्राम आपको समझ आ गया? बनाना आता है सेकेटर डायग्राम? हेलो, यस, जवाब क्यों नहीं देते हो आप? हेलो, हेलो, हेलो. जी सर. हाँ, ये कट हो गया, कोई कॉल करता था, कॉल के वक्त ही कट हो जाता है. तो मैं बताता हूं आपको कि सेकेटर डायग्राम आपको समझ आ गया? वो आसान है, सबसे आसान. जी सर. जी सर. जो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए थे सेकेटर डायग्राम के, वो आपने कर दिए, उसकी डायग्राम्स बनाई. तुम बनाए हुआ तुम डायग्राम? हाँ जी, वो परसों की होमवर्क थी हमें. हाँ हाँ हाँ, 1-2 दिन पहले. यस सर, हमने जी सर. की थी वो. सेकेटर डायग्राम है, सिंपल सेकेटर डायग्राम. ये हो गया? ये क्या हो गया? यस सर. जी सर. मैं आपको और एक क्वेश्चन दे दूंगा उसका, सेकेटर डायग्राम का, वो भी बनाना. ओके सर. हाँ, अच्छा, एक वेरिएबल हम x एक्सिस पे लगाते हैं, दूसरा y एक्सिस पे लगाते हैं. बनाए, लिखिए आप क्वेश्चन. मेक ए सेकेटर डायग्राम from the data given below.
from the data given below. That is between x and y. x and y के दरमियान हमें सेकेंडरी डायग्राम बनाना है. एक को x एक्सिस पे लगाइए, दूसरे को y एक्सिस पे लगाइए. तो ये वैल्यूज दे दीजिए. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. हो गया. 78, 72, 66, 60, 54, 48, 42, 36, 30, 24, 18 and 12. ये हमारा क्वेश्चन है. तो इसको आप सेकेंडरी डायग्राम बनाना. बिल्कुल ये वाली डायग्राम, x एक्सिस पे x और y एक्सिस पे y. इसी तरह ये अगर यहाँ 4 है, 78 है, यहाँ पॉइंट आएगा. इसी तरह 5 and 72 इस तरह आएगा. 6 and 62 खाली पॉइंट्स आपको बनाना है. फिर ये भी बंद करना है इस तरह है. तो ये अब बनाना है. ये x एक्सिस के पॉइंट्स हैं. किस तरह आप मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2 पे या 5, 10, 15 उस तरह कर दीजिए. वो आपकी मर्जी है. डिवाइड किस तरह लाइन को करोगे, किस पर करोगे लाइन डिवाइड, वो आप खुद करोगे. ठीक है जी सर. आज के लिए काफी है. 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए. 2 कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है आपको और एक सेकेंडरी डायग्राम बनाना है. हाँ, तो कल में हमारी प्रॉब्लम है, हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो गया. ना लैपटॉप चार्ज है, थोड़ा ये चार्ज है, ना मोबाइल मेरा चार्ज है, सब कुछ बैठ गया है. इसलिए आज इतना ही. मुझे नहीं लग रहा है वो 12th का क्या करेंगे हम. ये बैठ गए हैं. थैंक यू वेरी मच. ओके सर, अल्लाह हाफिज. थैंक जी सर, अल्लाह हाफिज. यू.